Good afternoon, Navneet sir. Am I audible? Hello. Yes, sir. Audible, audible. Hello. Hello. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. आपकी आवाज इसमें क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही? ऑन करके दोबारा बोलो। हेलो। सर आया ना? आपकी नवनीत नवनीत सर, आपकी आवाज आ रही है। सुन रहा है। Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. This is Sandeep Agarwal, representing Career Counseling Cell of DAV College Abohar, along with Computer Department. It gives me great pleasure to extend a warm welcome to all present here. At this juncture, I kindly request Dr. Harvinder Kaur, Head of Commerce Department, to grace us with her welcoming address to our esteemed guests. Ma'am Harvinder, please. Am I audible, sir? Yes, ma'am, you are audible. Thank you. Good afternoon, everyone. I welcome you all in today's webinar on career counseling, which has been jointly organized by Career Counseling Cell and Computers Department of DAV College Abohar. Dear students, as you are heading towards the completion of your graduation, one question must be boggling your mind, that what career path to choose and how to prepare yourself for that. And dear students, the choice of right career path is a very crucial decision as it is going to impact your entire life. It's important not only for the financial stability, but also for your intrinsic satisfaction and your personal growth.
I am delighted to introduce you to Dr. Ruchi Bansal, Manager, Amazon Books team, to facilitate you to take informed decision about your career path. On behalf of DAV College Abohar, I take this opportunity to welcome Dr. Ruchi Bansal among us. Welcome, Dr. Ruchi, and thank you for spending your precious time for connecting with us. I also welcome the teachers from this college and other institutes who have joined us on this virtual platform. Now I would request Dr. Sandeep Agarwal to formally introduce Dr. Ruchi Bansal. Dr. Sandeep Agarwal. Thank you, ma'am. Thank you very much. With great pleasure, I would like to introduce Dr. Ruchi, a diligent and passionate individual known for her unwavering dedication to her work. Ruchi ma'am holds a master's degree from Rajasthan University and has earned her PhD from NABI, which is a renowned institute, and it is very, I would like to say, just next to impossible to get registered under their director, and she has done PhD from their director. Her academic achievement reflect her commitment to continuous learning and growth. Currently working in Amazon Hyderabad, Ruchi ma'am excels in her role as an in-stock manager at Amazon. Her expertise in supply chain management and automation has significantly contributed to streamlining processes and enhancing operational efficiency within the organization. We are honored to have Ruchi ma'am as a speaker at our upcoming webinar. Her wealth of experience and insight in the field of supply chain management promises to inspire and enlighten our audience. Let us extend a warm virtual round of applause to Ruchi ma'am for her outstanding contribution and dedication to her profession. Ruchi ma'am, please. Thank you so much, Dr. Sandeep, for this warm welcome. I'm really humbled by your kind words. And thank you so much all for joining in and blocking some time from your busy schedule and giving me this opportunity to share my thoughts regarding my journey and my experiences towards this. And yeah, um, so when I thought if I want to talk something about the career counseling, how should you pave your way towards career? So I thought, how should I frame this half an hour for us to have some kind of actionable items for us? So I thought, how should I plan this 20-25 minutes for us so that we can make the best out of this? So I thought, what would I told my younger self if I got this opportunity to go back in time and talk to myself 10 years younger? So how would I um, guide myself? So based on that, I have prepared some talking points for us to connect over. And I would like to share my experiences, like how I pave my way or how I choose my career and how I made this journey. So I would like to take this opportunity to share my screen and start over whenever you all are ready. Yes, ma'am, we are ready. Thank you so much, sir. So I'm starting my screen. Please let me know if my screen is up. So, all right, can you see my screen? It is visible now, ma'am. It is visible now. Okay, just give me a second. Just give me a second. All right. Okay. So the title for today's connect is Navigating the Career Maze, Strategically Charting Your Path. As ma'am has told us very crucial points, like at this point of time, so you must be having this question bugging you all next because you are in the last leg of your academic life. So what
what we should do now, because it's a time that we take our financial responsibilities and start thinking like how are we going to make the best use of make the best initiatives for our career. So this is one of the most asked question, and this is one of the most important question, like what next. So I would say it's setting the stage or finding the final destination. So guys, I just want to take a break to ask if this the mode of communication is right. Should I pace it down? Should I pace it up? Or should I be switching it to Hindi or English, whatever is convenient to you? It is convenient. All right. Thank you so much, sir. Okay. So this is the first and the most crucial question. And this is the question that each one of us has addressed it at some point in time. Some people are lucky who know the answer to this question really easy, really fast, but some people find it really difficult to find a correct answer or to takes some time to arrive at the final answer, and it's completely all right. So I would say, like it's okay. It's really okay, and we can be anything we want to be it an artist, be it anything, but arriving at a solution or arriving at the right career choice, we can leverage two things. It is assessing your skills or interest, or I should say assess your interest first, and if you don't arrive at any answer to this question, then assess your skills. For example, um, just think what is one thing that you are most interested about. Now this is very, again, it's a very generalized question. What am I interested in? क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, या what I'm passionate about. I think ये words हमने बहुत बहुत बार सुने हैं अपनी life में, but it's not easy to answer this question. What is that तो the basic answer is, अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको करने में you lose the track of your time, आपको नहीं पता चलता है कि कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए, तो that is your passion. हैविंग सेड सो, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम फेसबुक रील्स देखते हुए या इंस्टा रील्स देखते हुए आई लूज द ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे नहीं पता चलता है कितने घंटे हो गए. पर दैट्स ट्रू, दैट कुड बी अ पैशन, लेकिन ये एम्प्लॉयबल नहीं है, राइट? तो ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि आप इससे यू कैन अर्न आउट ऑफ इट एंड दिस इज समथिंग you just love doing it, so that can be your best career choice. Some people are again very lucky to have this answer very clearly set in their life, but most of the people don't. हमें नहीं पता होता कि हम पैशनेट किस चीज के बारे में हैं, या तो उसके लिए बेस्ट चीज इज असेस योर स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे यू हैव अ लेवरेज, आप लोग यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, यू आर इन दिस कॉलेज, यू आर डूइंग दिस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन टेक. So one thing is you have some kind of skill set or a very good skill set around software engineering or coding or programming. So you are definitely have that kind of skill set with you, jo, that empower you or that can help you to make this career in this kind of a field. Although you can anytime in your life you can switch, but this is something you can leverage on. To assess your skills, कि how good I am. And when I say assess your skills, be very honest towards it. आप बहुत honesty से अपने आप को assess कीजिए कि okay fine, कि ये programming language है, ये मुझे आता है. तो ask yourself, मुझे कितना आता है? Am I able to make a app out of it? क्या मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ? Can I think about it? Okay fine, अगर मैं बना नहीं सकता, can I think about it? What are the milestones? कैसे बनेगी? क्या फर्स्ट स्टेप्स होने चाहिए, या what are the filters that we should use, और क्या मैं इसको कम्युनिकेट कर सकता हूँ? Can I write it down? Can I explain it to others? तो अगेंस्ट these three pillars, जो कि हमारा this is thinking, communication और स्किल सेट, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, इनके अराउंड अपना स्किल सेट को असेस कीजिए. इट्स फेयरली ऑल राइट कि अगर हम बहुत अच्छे नहीं भी हैं अभी एट स्टेज 0, अगर हम बहुत अच्छे नहीं हैं, वी कैन ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड इन दैट एरिया और वी कैन गेन दैट स्किल सेट. तो असेस क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं, तो थर्ड थिंग इज व्हाट यू वांट टू बी. व्हाट यू वांट टू बी इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. जैसे हम बच्चों से पूछते हैं, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट और आई वांट टू बी दिस थिंग.
just let's be more realistic. What you want to be का आंसर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि you have seen in society कि okay fine, the person XYZ is having some kind of a lifestyle. I want that lifestyle. How is he going to have this lifestyle? मुझे भी वो lifestyle चाहिए. तो उसने क्या किया? तो I can follow his journey or her journey. Second is he or she is able to have that kind of decision making in their life. उनके पास ये opportunity है कि वो इतने बड़े बड़े इस तरह के काम कर सकते हैं. I want to do this kind of job, or I want to take this kind of decisions, or I want to create that kind of impact. तो उस basis पे आप अपना decision ले सकते हैं. तो try to find a domain ताकि हम वहां तक जाने का रास्ता navigate कर सकें, so that we can find a way. So this is one of the most crucial, most important aspect. Otherwise we will get lost कि अगर हम 6 months of our life हम कुछ और कर रहे हैं, 7 months of the line we are doing something else, it will be really difficult to find the final destination. So this is the first and the most crucial step, that is choosing, at least if not a specific career, at least try to find a domain. Okay, and the second, the step would be defining your short-term and long-term goals around it. When I say short-term or long-term goals, इसको हम ऐसे समझते हैं. Guys, I just want to check if you are able to follow. Am I audible? If my screen is up, is there any kind of... Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Your screen is up. Okay, thank you so much, sir, for confirming this. Okay, so guys, this is something which is right, defining your short-term and long-term goals. ये बहुत 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 important step है. ये आप अपनी पूरी life you are doing this. Like for example, आपका school या आपका board एक syllabus set करता है कि at the end of this academic year, the students must know this thing. Like इतना portion उनको आना चाहिए. तो according to that, they plan their क्वार्टरली एग्जाम्स और आपके मंथली टेस्ट आपके प्लान किए जाते हैं ताकि टू कीप अ ट्रैक. इसी तरह से मूविंग ऑनवर्ड्स टू योर करियर, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ Amazon, एज आई एम वर्किंग फॉर Amazon. अगर हम चाहते हैं कि हमें Amazon में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल चाहिए, तो थिंक अबाउट इट कि अभी Amazon का अगर हम Amazon में इंटरव्यू के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट. अगर उनकी एक रिक्वायरमेंट है, इट्स अ 10 लिस्ट ऑफ 10 पॉइंटर्स. जैसे अगर उनको ये इतना एक्सपीरियंस चाहिए या फिर इतना एक्सपर्टीज चाहिए, इस तरह का स्किल सेट चाहिए, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास अभी राइट नाउ उसमें से क्या है. वी हैव 2 आउट ऑफ 10, वी हैव 3 आउट ऑफ 10 और वी हैव 7 आउट ऑफ 10. हमारे पास क्या है. तो हाउ वी कैन गेट दोज 5 थिंग्स, लाइक 5 काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस अगर हमें चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डू टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन. उसकी बेसिस पे ट्राई टू फाइंड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे Amazon में काम करना है, तो Amazon इज अ ई-कॉमर्स टेक कंपनी. तो आप उसके पैरेलल कंपनीज चूज कर सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्लिपकार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ Paytm, मेक अ लिस्ट ऑफ Amazon, ऑल द अदर काइंड ऑफ कॉमर्स कंपनीज, टेक कंपनीज की आप लिस्ट बनाइए. फिर उसके अंदर रोल्स की लिस्ट बनाइए कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, इट्स अ प्रोग्राम मैनेजर, इट्स PMT टेक्निकल. किस तरह के रोल्स हैं जो आप चाहते हैं. मे बी 2 years डाउन द लाइन यू आर एबल टू क्रैक देयर. अब वहां तक पहुंचने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज यू कैन हैव. इट इज इजियर सेड देन डन. ये कहना बहुत आसान है क्योंकि जहां से आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक आई हैव अ करियर ऑफ 7 years, तो आई कैन सी कि क्या क्या रास्ता हो सकता था. बट आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ से यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है कि कौन सी कंपनीज होंगी मैम, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ये हाउ टू रीच आउट, हाउ टू मेक अ लिस्ट. एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट. जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करेंगे, आप बात करेंगे, रेलेवेंट लोगों से मिलेंगे, यू विल गेट द आंसर टू दिस थिंग. तो स्टार्ट डूइंग इट. अपने आप को असेस कीजिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज आप लिस्ट आउट कीजिए कि ऐसी पैरेलल कौन सी कंपनीज हैं. मे बी उनमें से 2-4 गलत होंगी, इट्स फाइन, इट्स टोटली ऑल राइट. स्टार्ट डूइंग इट. द नेक्स्ट स्टेप इज रिज्यूमे प्रिपरेशन. या इसको ये बहुत ऐसा लगता है कि रिज्यूमे इज वेरी सिंपल. हम मैम रिज्यूमे में क्या है, हम अपने फ्रेंड का ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, अपना डेटा और इट्स डन. नहीं, इतना इतना आसान नहीं है. टेक सम टाइम. क्योंकि आई थिंक जब भी एक जॉब या ओपनिंग आती है, तो हायरिंग मैनेजर्स के पास आई थिंक हंड्रेड्स और मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स रिज्यूमेज आते हैं, एंड दे हैव ओनली कपल ऑफ सेकंड्स आपका रिज्यूमे देखने के लिए.
ऐसा नहीं होगा कि वो वर्ड बाय वर्ड आपका रिज्यूमे पढ़ेंगे. नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड सो मच टाइम फॉर यू. तो आप इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप एक टेम्पलेट रिज्यूमे अपना बना के रखिए. वो टेम्पलेट रिज्यूमे आप किसी का भी कॉपी कर सकते हैं. इवन आई कैन प्रोवाइड माई टेम्पलेट रिज्यूमे टू डॉक्टर सोनिका. आप उनसे यू कैन हैव इट, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम रिज्यूमे बना रहे हैं. व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्मेट इन द राइट नाउ एट प्रेजेंट. क्या एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है आपके पास, उसमें से अभी क्या है. फिर उसके बाद whenever you are applying, for example you are applying for a company X, तो आप उसमें जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए. हर कंपनी जब भी एक प्रोफाइल निकालती है, दे सेंड आउट अ जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी, विच इज कॉल्ड JD, जॉब डिस्क्रिप्शन. उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है समथिंग अबाउट दैट जॉब, कि वो जॉब क्या होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल इफ द जॉब इज अराउंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म टीम, तो वो बताएंगे कि हम वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर द फोरकास्टिंग पोर्टल और एनी काइंड ऑफ पोर्टल, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि वो बग्स फ्री हो, या वी वांट टू इवैल्यूएट इट, या ग्रो करना चाहते हैं, या जो भी वॉट एवर द जॉब डिस्क्रिप्शन वो होता है. सेकेंड इज कि उनको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है उस कैंडिडेट के लिए, उसको आप पढ़िए कि आप उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आप कहते हैं, कि वो क्या उनको चाहिए, 2 साल का एक्स चाहिए, इस तरह का स्किल सेट चाहिए, या क्या चाहिए. द थर्ड थिंग इज कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस होता है, कि दिस इज द बेयर मिनिमम, बट इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस, तो वी प्रेफर दोस काइंड ऑफ कैंडिडेट्स. तो दिस इज अ बेसिक, इस तरह का लगभग जेडी रहता है. तो आप एक बार जेडी को देखिए, फिर आप अपने रिज्यूमे को ऑटो ट्यून कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला है कि हमें ये 3 स्किल सेट्स चाहिए, तो आप उन 3 स्किल सेट्स को ट्राई टू फाइंड कि आपकी लाइफ की जर्नी में उस तरह के एग्जाम्पल्स कौन से हैं जहां पे आपने उससे मिलता जुलता एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 और 1 आउट ऑफ 3 काम किया है, उसको बोल्ड में कीजिए. देन सेंड इट देयर वे, ताकि वो जब देखें तो उनको लगे कि ओके फाइन, ये जो कैंडिडेट है इसके पास ये 3 में से ये एक चीज एडिशनल है, तो ठीक है फाइन, हम इसको यहाँ रख सकते हैं, या इसके पास तीनों हैं. तो ताकि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करे. और ये नहीं कि एक ही रिज्यूमे को आप हर 10 कंपनी में भेजते रहे. इट्स नॉट लाइक दैट. हर बार जब भी आप किसी को भेज रहे हैं, उसको एक बार देखिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड और हमें क्या भेजना है. जैसे कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए करते थे, राइट. आपसे कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता था, यू हैव टू रीफ्रेज योर आंसर्स. आप ऐसा नहीं था कि हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक एक ही आंसर है, व्हाटएवर यू आस्क यू आंसर इट सेम वे. सेम गोज फॉर इट. आई थिंक दिस इज द मेजर फ्लॉ जहां पे लोग सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड पोर्शन, क्योंकि 90% ऑफ द रिज्यूमेज रिजेक्ट हो जाते हैं यही. ओनली 10% रिज्यूमेज होते हैं जो कि आगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए जाते हैं, जहां पे एटलीस्ट आपका टेक्निकल स्किल सेट या वट एवर द स्किल सेट इज वहां पे असेस किया जाता है. बट ट्राई टू मेक दैट पीस ऑफ पेपर successful so that you can succeed in life. So I think this is the most underrated one. This is the most crucial one, and try to spend some time over here. Just for a context, आजकल जो है one pages resume ही चल रहे हैं. तो that is the most acceptable format. Nobody likes कि आप 4-5 पेज का उसको resume दे दें. Nobody is going to flip that resume. Second page तक कोई पहुंचता नहीं है. तो now second thing is after this आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना. ये यहाँ से आप जहाँ हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है कि यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एलुमनाइज. So I just want to take a break and ask if the guys are still with me. हाँ जी नवनीत सर, students, if there is any query at the students end. बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आई नो थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं. ये टारगेट हम कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल है, अमेज़न है, अगर उसके लिए कर रहे हैं तो कैसे करें. थोड़ा सा ध्यान से सुनना. एनी क्वेरी? रिज्यूम वाली बात तो मैम आपने ठीक पॉइंट है कि सारे स्टूडेंट जैसे कि रिज्यूम बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं कि एक का रिज्यूम मिल गया बस पूरी क्लास का वैसा ही होता है. सर
इसके दो रीजंस हैं। पहला, जो स्टूडेंट्स अभी हैं उनके पास ज्यादा कुछ अपने पास है नहीं बताने के लिए। फॉर हाँ जी, एग्जाम्पल, हाँ जी, अभी दे आर जस्ट 22, 23 या इसी एज ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने अभी तक अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट नहीं किया है, तो उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। तो इट मेक सेंस, इट कम्प्लीटली मेक सेंस, इट्स फाइन, इट्स टोटली ऑल राइट। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो भी आपको हायर कर रहा है, आप उस थोड़ा सा अगर हम उसकी नजर से सोचेंगे कि वो भीड़ में से हमें क्यों चुने और कैसे चुने, तो उसको क्या मिलना चाहिए, तो वो अगर हमारे पास है तो वो मिस आउट नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह की जॉब अगर निकल रही है जहां पे आपको लगता है कि आई कुड बी वन कैंडिडेट, तो ट्राई टू मेक श्योर, क्योंकि आपका वो पेज ही जाने वाला है आगे, आपको कोई येस और नो बोलेगा या आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, वो इसीलिए स्पेंड करेगा अगर उसे लग रहा है कि हाँ, यू कुड बी राइट कैंडिडेट। तो येस और नो, अगर आपका वो पोर्शन सही नहीं है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, आपने जो आंसर शीट में लिखा, अगर आपने आंसर शीट में ही सही नहीं लिखा तो डजेंट मैटर आपने पूरे साल कितना पढ़ाई किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दो, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर शीट में आपका नॉलेज को शेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे, प्रॉपर रिज्यूमे बनाना। यस मैम। सेकेंड थिंग इज, उसके बाद आपने रिज्यूमे बना के रखा अपने पास, उसके बाद है प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना। अब ये कैसे कर सकते हैं? प्रोफेशनल नेटवर्क इज अ बिग थिंग, मतलब नेटवर्किंग आई थिंक बहुत बहुत एज तक जाकर भी हम नेटवर्किंग पे काम करते हैं, और नेटवर्किंग इज अ बिग थिंग, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप इस वक्त कॉलेज में हैं, कॉलेज में चेकआउट कीजिए कि यहाँ के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज 5 साल पुराना कोई एलुमनाई है, अगर वो किसी उस तरह की कंपनी में है, तो आप उसको लिंक्डइन पे ज्वाइन इन कर सकते हैं। लिंक्डइन पे उनके साथ प्रोफाइल चेकआउट कीजिए। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी लोकेलिटी से कोई लोग हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा रिसेप्टिव हुइए, और ट्राई टू हैव अ कॉफी चैट। इसको मतलब दैट्स हाउ वी टॉक इट, वी हैव अ कॉफी चैट। आप लिंक्डइन पे उनको बोलिए कि आई वांट टू स्पेंड सम 10 मिनट्स विद यू, आप मुझे टाइम दीजिए और मुझे बताइए कि आपने जो किया मुझे भी वो करना है, व्हाट शुड आई डू। तो वो आपको बहुत रेलेवेंट चीजें बताएंगे, जो कि लेट्स सपोज अगर उन्होंने बोला कि ओके फाइन, आप ऐसा कीजिए कि आप ये स्पेसिफिक कोर्स कर लीजिए, या ये स्पेसिफिक 2-3 चीजें आप सीख लीजिए, या इस तरह की इस मंथ में कोई वैकेंसी निकलने वाली है, आप तब अप्लाई कीजिए। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअली एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिलती है। और तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज? आप अपने एल्यूमिनाइज को चेकआउट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को चेकआउट कर सकते हैं, या आप अपने जब भी आप किसी भी कंपनी के प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां पे हायरिंग मैनेजर की इंफॉर्मेशन होती है, तो आप लिंक्डइन पे उनको ढूंढिए और वहां पे उनको मैसेज ड्रॉप कीजिए कि मुझे आपसे मिलना है इस जॉब के रिगार्डिंग, आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि वो भी एक्टिवली कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप 10 लोगों को रीच आउट करेंगे तो 1 या 2 माइट रिवर्ट बैक टू यू। तो आप उनसे बात कीजिए कि मेरा ये XYZ ये एक्सपीरियंस है, या अभी आई स्टिल वांट टू लर्न, तो आप मुझे किसी भी कैपेसिटी में मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए आपके साथ काम करने की। तो आई थिंक लिंक्डइन और एल्यूमिनाइज, ये 2 बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप रीच आउट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं नेटवर्क बनाना। इसके अलावा लिंक्डइन पे एक ऑप्शन रहता है कि आप कंपनीज की प्रोफाइल्स में रजिस्टर भी कर सकते हैं, तो वहां पे जैसे भी वैकेंसीज होती हैं तो आपको बहुत जल्दी वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ओके फाइन, अभी ये चल रहा है, अभी ये वैकेंसी निकल रही है, या इस तरह की वैकेंसी ज्यादा निकल रही हैं, वहां पे इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, मेरे पास ये है और मुझे ये चाहिए। तो आप इस तरह से अपना यू कैन ब्रिज द गैप। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, लेकिन ये आपकी सक्सेस की चांसेस बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है ओके फाइन, ये 2-3 चीजें करने की जरूरत है। ओके फाइन, अब मुझे ये करना है, इसको रीच आउट करना है, ये लोग ढूंढ रहे हैं और ये मेरे पास है, दैट्स हाउ आई कैन इन कैश इट। तो ये आपको रियल टाइम, रियल वर्ल्ड और इंफॉर्मेशन देता है। Okay, moving on to the next slide, which is interview preparation.
आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। अगर आप कोई भी एक जॉब लेते हैं तो उस जॉब के स्पेसिफिक 3 से 6 महीने लग जाते हैं उसको क्रैक करने के लिए। और कभी-कभी मल्टीपल राउंड्स भी लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अमेज़न का ही इंटरव्यू दिया तो मे बी एक इस बार नहीं हुआ तो यू हैव टू रीट्राई इट आफ्टर सम टाइम। आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, फिर उसके बाद फिर आप ट्राई करते हैं। या इस तरह से जैसे आप यू डू इट फॉर आईएएस, यू डू इट फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैट के लिए आप करते हैं। तो इसी तरह से अगर अच्छी प्रोफाइल्स पे आप काम करना चाह रहे हैं तो इट मे टेक 1 और 2 अटेम्प्ट्स टू डू इट और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन टाइम। तो अब प्रिपरेशन क्या होता है? मतलब ये बहुत वेग टर्म है, बहुत जनरलाइज़ टर्म है कि हमें प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो आई वुड से कि 2 चीज़ों पे कैश कीजिए। वन इज़ टेक्निकल स्किल सेट। आस्क योरसेल्फ, आपने यहाँ पे बहुत सब कुछ पढ़ा है, ड्रॉप एवरीथिंग। उसमें से आप पूछिए कि मुझे क्या आता है या किसमें मैं अच्छी हूँ और क्या मैं और कर सकती हूँ। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं सिंस आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू आईटी स्टूडेंट्स, हैकर रैंक है या बहुत सारी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और बहुत डिसेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट राइटिंग देयर, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा, ताकि यू विल बी गुड एट समथिंग। ताकि अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, यू एबल टू नेल इट। डिग्रीज हैं हमारे पास, सपोर्टिव डिग्रीज, लेकिन हमें जेन्युइनली कितना आता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट। Improve your skill set, improve your coding skills, programming skills. Second thing is basic communication. When I say basic communication, तो I don't mean कि आप एकदम flawless होने चाहिए या you should have enriched vocabulary. We are not trying to do for IELTS या हम वो objective नहीं। objective ये है कि अगर आप किसी को X चीज कह रहे हैं तो उसे भी वो X चीज ही समझ में आए, उसको X+1 या X-1 नहीं समझ में आए। क्योंकि हम लोग अपने अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, अपने और जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके साथ वर्बल ईमेल के थ्रू या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या पावर पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले इंसान को समझ में आए ताकि हम काम कर सकें, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी क्लियर, क्रिस्प इनफ, क्योंकि किसी के पास बहुत टाइम नहीं है आपको बैठ के सुनने का या आपका बहुत लंबा मेल पढ़ने का। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या प्रॉब्लम आ रहा है या क्या बग है, क्या सोल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वर्क ऑन दीज 2 स्किल्स एंड उसके अलावा रीच आउट टू द पीपल। जो भी आप प्रोफाइल को चूज करना चाहते हैं, जो भी आप करियर पाथ लेना चाहते हैं, उसी तरह के लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि इस पर्टिकुलर हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़न हैज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, हर जॉब के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो उस तरह के लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस आप ला सकते हैं कहीं पे काम करके, वेल एंड गुड। नहीं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, गेन द एक्सपीरियंस एंड देन एम्पावर योरसेल्फ। या उस तरह की प्रोफाइल के लिए चाहिए, इंटरव्यू लूप्स के लिए चाहिए। So I can share my example कि how do I prepare for Amazon if you want to know, or but yeah, that's pretty much about how to navigate your career path। किस तरह से हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या उसके मेजर माइलस्टोन्स हैं, how can you make sure कि आपका सक्सेस बेटर हो, and yeah, how to arrive at your destination। This is pretty much the context I think कि जो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, that I can share। नवनीत सर, स्टूडेंट्स की तरफ से I'm sorry if I miss any message क्योंकि I couldn't see the messages message box में अगर कोई था तो okay। Okay, fine। Just to make everything blends well,
I can share my experience. How was my professional journey? If it's all right. Yes, ma'am. Yes, please. Okay. So finally, I have done my graduation and post graduation from University of Rajasthan. Post that, I had some corporate experience working for startups. जैसे I start my career by working in Map My Party as a program manager. उसके बाद वहाँ 1-1.5 साल मैंने काम किया कि हाउ डू वी वर्क विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो जब भी आप काम करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्किल सेट्स जो आप गेन करते हैं। वन इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है बात करना, कैसे आप किसी को, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो डिफरेंट लोगों को कैसे इन्फॉर्म्ड रखा जाता है। ये नहीं कि हमने काम किया और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, हाउ डू यू शेयर योर कम्युनिकेशन विद देम। तो ये जो स्किल सेट्स होते हैं इनको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। या तो वहाँ पे आई गेन्ड सम काइंड ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ स्किल सेट। और किस तरह से हम तो पोस्ट दैट उसके बाद मैंने NABI में काम किया। वहाँ पे आई हैव डन माय डॉक्टरेट एज़ वेल और माय डॉक्टरेट वाज़ मोर अराउंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड computational biology. But there also I gained the skill set of around working around the data sciences के around मैंने काम किया। उसके बाद I had more career options working abroad, but due to my personal commitments, I cannot choose that path. So there was a time that I have to take a pivot. तो वहाँ से पिवट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन था। आई ट्राई टू वर्क फॉर द मेजर कॉर्पोरेट्स, जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं, आई पुट माय रिज्यूमे देयर। लेकिन आपको पता है, एज आई हैव टोल्ड, कि रिज्यूमे सिलेक्शन, आई थिंक एक बार रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो आई थिंक हाफ ऑफ द बैटल इज वन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वही है कि रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट करवाया जाए। तो और दूसरी चीज ये है कि जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपके साथ ये नहीं बताता है कि उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया। आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो इस प्रोसेस को और भी डिफिकल्ट बना देता है, कि वो ये नहीं आपको बताते हैं कि आप क्यों रिजेक्ट हुए। इफ यू गॉट दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप उस पार्ट पे काम कर सकते हैं कि हाँ चलिए 1 महीना हमने इस पार्ट पे काम किया और हमने ये वीकनेस दूर किया, नाउ माय रिज्यूमे इज पावरफुल इनफ। तो समहाउ आई गॉट लकी और मेरा एक इंटरव्यू राउंड, मैंने एक कंपनी के साथ काम किया। लेकिन वहां पे मुझे ये इनसाइट मिला कि वी डोंट नीड डॉक्टरेट एक्सपीरियंस, हमें थोड़ा और रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहिए। आफ्टर दैट आई जॉइंड अ स्टार्टअप और वो स्टार्टअप था गुड़गांव का एंड दे वर वर्किंग फॉर सप्लाई चेन। तो वहां पे आई टुक दिस opportunity to work for supply chain free of cost. Like I was just working there and I wasn't taking salary, but I took this opportunity कि I want to own the responsibility. मुझे मतलब पूरा काम करना है। I want to own this thing कि I want to work on different projects. जब आप जॉब करते हैं तो आप एक ही काम को repetitive मोड पे करते हैं कि जनवरी में भी आप वही काम कर रहे हैं, फरवरी में भी आप वही काम कर रहे हैं, मार्च में भी आप वही काम कर रहे हैं। But since I was working there to empower myself to learn the craft, तो I took different projects कि मुझे इस प्रॉब्लम पे काम करने के बाद दोबारा इसी प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, मुझे दूसरी प्रॉब्लम पे काम करना है ताकि आई कैन लर्न। मुझे वहाँ से देन आई अप्लाइड फॉर अमेज़न और वहाँ पे आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। व्हाट हैपेंड विद अमेज़न इज बेसिकली उनका इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो या अगेन फॉर अदर ऑल पैरेलल कंपनीज आल्सो जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे ये जो इंटरव्यू प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी लंबे। पहले आपका एक असेसमेंट राउंड होता है जहाँ पे आपका फर्स्ट इज रिज्यूमिंग, सेकंड इज असेसमेंट राउंड जहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल सेट आपको फॉर एग्जांपल आई वाज क्लेमिंग कि मुझे डेटा साइंसेस आता है तो देयर वाज लाइक एसक्यूएल टेस्ट और दिस टाइप ऑफ कोडिंग टेस्ट। जो भी टेस्ट आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उससे रेलेवेंट जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट होंगे। इफ यू पास दैट उसके बाद आपका इंटरव्यू लूप सेट किया जाता है। इंटरव्यू लूप 4 या 5 राउंड्स का होता है, 1-1 घंटे के राउंड्स होते हैं जहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे बात करता है और आपसे दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पता है, आप कैसे सोचते हैं। कैसे सोचते हैं इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए तो हाउ विल यू थिंक अबाउट इट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली जेन्युइनली काम करें, क्योंकि आपको सोचना कोई नहीं सिखा सकता, सोचना आपको खुद आना चाहिए, वो आता है एक्सपीरियंस से। So when you have experience working in a similar background, you have this data picked up. Yeah, you can go to and fro on that problem. उसके बाद there is a bar raiser round. बार रेजर राउंड का मतलब होता है वो चाहते हैं कि हमारे पास जो
जो भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है दैट इज गोइंग टू बी बेटर देन ऑल द एसोसिएट्स दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग, ताकि हमारा ह्यूमन पूल जो है वो बेटर होता जाए विद एवरी पासिंग। एंड उसके बाद यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग देयर। तो इट्स क्वाइट लेंथी, 5-6 राउंड्स रहते हैं एंड एवरी राउंड इज अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन राउंड। So that's how things happen there, or that was my journey. But that's totally worth it, I must say. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझा कि पूरा प्रोसेस कैसे चलता है और कैसे आप लोगों ने अपने पाथ्स को सिलेक्ट करना है। नवनीत सर, सोनिका मैम, वहाँ स्टूडेंट्स की कोई क्वेरीज हों? मेरी एक क्वेरी थी मैम, स्टूडेंट्स Yes, sir. मेरे पास बैठे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जैसे ये अपॉर्चुनिटीज एक तो आपने बता दिया कि लिंक्डइन पे शेयर होती हैं, जी कि उसके अलावा हम लोग इन चीज़ों को कहाँ सर्च कर सकते हैं? सर, हर कंपनी का वेबसाइट रहता है, उस पे करियर का ऑप्शन रहता है, राइट? लाइक फॉर अगर मैं अमेज़न की ही बात करूँ तो अमेज़न करियर्स है। तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल्स खुलती रहती हैं, लाइक किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो इट्स कंप्लीटली देयर। जो जेडीज की मैंने बात किया, जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात किया, तो वहाँ रहता है। तो आप एक्टिवली उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे ही समझिए, ये वैसा ही है जैसे कि आप अपने कैट का एग्जाम का वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि फॉर्म निकला या नहीं निकला, आईएएस का फॉर्म निकला नहीं निकला। इट इज प्रीटी मच सिमिलर। आप 2 या 4 जो भी कंपनीज का लिस्ट आपने बनाया, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आप लिस्टिंग बना के रखिए। तो वहां पे ये कॉन्टिन्यूसली पॉपअप होता रहता है। आप 1 महीना ट्रैक करेंगे, मे बी 5 मिनट वीकली बेसिस पे या एवरी ऑल्टरनेट डे, अगर आप 5 मिनट स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा, ओके फाइन, इस तरह की वैकेंसीज आती हैं, इस तरह की चीजें उनको चाहिए। तो अभी तक क्या था, अभी तक आपके पास टीचर्स रहते हैं, उनका सपोर्ट रहता है, तो वो आपको बता देते हैं कि ओके फाइन, आपको इस साल में ये पढ़ना है। तो स्टूडेंट को कभी ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ से आगे जब टीचर्स का सपोर्ट निकल जाता है, वहां से ये डिसाइड करना कि मुझे बेसिकली चाहिए क्या, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट और सबसे क्रूशियल पार्ट। तो जब आप इस तरह की वैकेंसीज देखते हैं तो वहां से आपको ये पता चलता है कि ओके फाइन, यहाँ पे लोग ये मांग रहे हैं, ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, उनको लेट्स सपोज एसक्यूएल चाहिए, उनको पाइथन चाहिए। ओके फाइन, पाइथन मुझे इतना आता है, इतना और ब्रश अप करने की जरूरत है, देन आई एम गुड टू गो। तो ये जो इंसाइट है ये आपको वहां से मिलेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, आप गूगल को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे बहुत इजीली, बहुत ओपनली बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। स्टार्ट डूइंग इट। आप डरिए मत, स्टार्ट डूइंग इट। आप मान के चलिए कि पहले 5-6 महीने आप खराब करेंगे, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। और उनको भी पता है कि आर जस्ट अ कॉलेज फ्रेश हो, दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड। इतना एक्सपेक्टेशन बार में इतना हाई नहीं होता है। ओके मैम, ओके। एनीथिंग एल्स? आई थिंक सर, अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होता है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई एम देयर ऑन लिंक्डइन, और प्लीज शेयर माय रिज्यूमे, आई शेयर द डिटेल्स विद डॉक्टर सोनिका। ओके 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 मैम, ओके मैम। थैंक यू डॉक्टर रुचि फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव टॉक। अभी संदीप सर आपका फॉर्मली थैंक यू करेंगे, लेकिन मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप अपना कैमरा अगर ऑन कर लेंगे तो वी वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, श्योर। हाँ, जितने भी अटेंड कर रहे हैं, अगर वो जी, कैमरा ऑन कर लेंगे तो। रश्मि मैम, इंक्लूड अदर टीचर्स आल्सो। हरविंदर मैम की तरफ थोड़ा मूव करेंगे। गुंबर सर, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है जी सर। स्क्रीनशॉट जो जो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। संदीप सर आपका गया कैमरा? हाँ ठीक है।
ठीक है मैम. एक मिनट और. Chaliye, in the meantime, I would like to extend my sincere gratitude to our esteemed speaker for sharing her invaluable insight during this enlightening career counseling seminar. Her expertise has illuminated the pathways to various opportunities available to our attendees, paving the way for informed decisions and promising futures. During her discourse, she adaptively navigated through crucial aspects like addressing one's skill, delineating short-term and long-term goals, and particularly emphasized the significance of resume preparation and auto-tuning it. Furthermore, she underscored the importance of meticulously checking preferred qualification and skill set based on the job description, as they serve as cornerstone for successful application process. In addition, our speaker emphasized the vital role of leveraging alumni network and building a robust professional network. She emphasized how tapping into these networks can provide invaluable support, mentorship, and opportunities for career advancement. These insights serve as guiding beacons for individuals aspiring to curve their paths in dynamic landscape of modern careers. Thank you, Ruchi ma'am. Thank you very much. Thanks, Dr. Sandeep. You captured it all beautifully. I really appreciate it. Thank you, Ruchi ma'am. Thanks, Dr. Sandeep. And